Hello everyone. In this time I am talking about friction. Do you know friction, students? Friction is a equal part of a whole number. Equal part of a whole number. If you can understand this is a whole circle. This is a one part, and we can divide into two. This one is first, another one is second. So 1 and second यानी 1 by 2. This is called friction. One is known as numerator and another one upon side is known as denominator. We can divide it into two parts. If we can divide it into four parts, this is known as 1 by 4. तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैं किसी चीज को दो भाग में बांटूं या चार भागों में बांटूं, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन. जो ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. फ्रिक्शन जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला टाइप है like fractions. Do you know like fractions? I can talk about like fractions. The like fraction, when denominator is same, numerator is different and denominator is same. That is 1 by 2, 4 by 2, 6 by 2. This is known as like fraction. Understand? Another one example, if we can define 1 by 3, 4 by 3, 6 by 3, this is known as like fraction. And we can go into the another example, another type of friction. This is known as unlike friction. When a denominator is not same, any friction, then you can write it 1 by 3, 2 by 9, 4 by 8. This is known as different denominator. This is called unlike fractions. Next one is proper. Proper fraction is understanding very well. If you can define the problems, then proper fractions, numerator is less than denominator. This is very important. You can understand numerator is less than denominator, then we can say 4 by 7. 7 is a denominator and 4 is a numerator. Then denominator is greater than. Another one, if we can write 6 by 8. If we can say 2 by 4, this is right. Yes. If again I can write 6 by 3, this is not right because denominator is less than numerator. So this is wrong and whole three are correct for proper fraction. Next, fourth number, improper fraction. This is just reverse. Numerator is greater than denominator or numerator is equal to denominator. If you can understand, this is called improper frictions. अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि improper frictions में कैसे हम डिफाइन करेंगे और कैसे हम समझेंगे कि ये improper friction है. जैसे मैं improper की बात कर रहा हूं आपसे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, मैं ये कह सकता हूं कि 4 by 6. इसमें आप देखेंगे 4 इज न्यूमरेटर, ये अभी छोटा है तो यहां पर ये गलत हो गया, ये वाला प्रॉपर फ्रिक्शन कहलाएगा. और अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा 6 by 4. दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रिक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज लेसर देन न्यूमरेटर. और इक्वल भी हो सकता है. इफ वी कैन राइट 4 by 4, दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रिक्शन. Mixed friction is that when whole number and a proper friction is called mixed friction. And next one, equivalent friction. Mixed friction, whole number. We can say
2/3/6 is called mixed friction. 1/4/7 is also a mixed friction, and we can move to equivalent friction. Equivalent friction is called all fractions are same. That is, if we can say 4/8, another one 12/24, another one 15/30, whole are equivalent, same. Says that 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24. Same table has been cut about numerator or denominator. 15 बन जा 15, 15 2 जा 30. All are 1/2, 1/2, 1/2. This is equivalent friction. And last one is reciprocal. Reciprocal का मतलब होता है उल्टा. अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है फ्रिक्शन में जिसको मैं कहता हूं 4/5, इसका रेसिप्रोकल फ्रिक्शन क्या होगा? 5/4. क्लियर? तो ये 5/4 हुआ, ये इसका उल्टा हो गया. इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालना आना चाहिए. 2 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप फ्रिक्शन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. और मैथ में रटने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? मैं कहता हूं 12, 24, 36. आपको पहले एलसीएम निकालना है. एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का एक बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूं. आपको कभी भी इसको याद नहीं करना है. क्या करना है? आपको सिर्फ समझना है कि 12, 24 और 36 मैं कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं. इसी को फैक्टर्स कहते हैं. कैसे? 12 है मेरे पास, 2 से डिवाइड लगाया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3. जब तक 1 ना आ जाए तब तक मैं इसको फैक्टराइज करता रहूंगा. अनदर वन इज 24. 2 से काटेंगे, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3. लास्ट वन 36. अब 36 को देख लीजिए, 2 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1. देखेंगे तो सभी में लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. और यदि 1 आएगा तो हमारा वहां तक काम कंप्लीट होगा. अब मैं इसके फैक्टर्स को लिख लेता हूं. 2 multiple 2 multiple 3. Another one 2 multiple 2, 3 times 2 है, and 2 multiple 3. ओके, यहां पर 2 times 2 है, 2 multiple 2 और 2 times 3 है. तो जिसके नीचे 3 है उसके नीचे 3 लिख लेंगे और एक 3 को बाहर लिख लेंगे. एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, वो आपको कभी इस सवाल को गलत नहीं होने देगी. क्या ट्रिक है? देखिएगा. जो आपको सभी में एक जैसे दिखाई दे रहे हो उसको मैं कॉमन ले लेता हूं. 1 2 3. ये आपका कॉमन पार्ट निकल आया क्योंकि ये तीनों में शामिल है. इसको कहता हूं 2 2 3. बचे हुए पार्ट को आप और लिखेंगे. इनको कहता हूं 2 into 3. इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए. इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 into 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7. आपको 12, 24, 36 का एलसीएम कितना आ गया?
72। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई भी फ्रिक्शन में कंफ्यूजन हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर क्वेश्चन बॉक्स में लिख सकते हैं और क्वेरी पूछ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाकर व्यूअर्स को लाइक करिएगा। थैंक यू।